माननीय सभासद, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन आवर 2 to 8, श्री अजीत कुमार भैया, श्री अजीत कुमार भैया, क्वेश्चन आवर, ऑनरेबल मेंबर्स, क्वेश्चन आवर 2 to 6, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, answer is laid on the house, answer is laid on the house, like answer is laid on the house. supplementary, Dr. Thambi Durai. Thank you, Deputy Chairman, sir. You know very well. Please put your supplementary. Hydroelectricity power generation is both cheap and also good for the country. Due to the climate change and other issues, pollution, we have to have more hydroelectricity power generation projects. I want to know through you, sir, Honorable Minister, whether you can say, is there any survey Government of India is conducting to find out the potential of hydroelectricity power generating units in various parts of the country, and also whether Tamil Nadu has given any proposal to have hydroelectricity project in Tamil Nadu? Sir, the Central Electricity Authority and the Central Water Commission conduct surveys from time to time to identify potential hydro projects, and the ministry has a list of the potential sites. So if the honorable member desires, we can send him a list of the potential sites which have been surveyed, and from there he can see whether there is any proposal from, as far as the proposal from Tamil Nadu is concerned, I am not aware of any proposal from Tamil Nadu for setting up a hydro plant. But the honorable member is right. Hydropower is absolutely essential for today's day and age when we have undertaken a transition, energy transition, so as to reduce our dependence on fossil fuels and bring in more and more renewable energy. Now, injecting more and more renewable energy requires hydropower as a balancing power, which, because of its high ramp rate, it can be started immediately, it can be stopped immediately. So hydropower is absolutely necessary in this day and age, and we have revived hydropower. We have come out with a policy for encouraging hydropower, and a number of projects which were installed have also been revived. Subansiri is one such case. Dibang is another, which we are going to start very soon. That is also 2,880 megawatts. So by and large, the hydropower development is going on, and we have today about 12,000 megawatts under Supplementary, Sri KJ Alphonse. Mr. KJ Alphonse, please. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, since the price of non-renewable energy is so low, it's rock bottom today, and since hydroelectric power comes with its dangers of having to evict people, deforestation and all that, why do you need hydroelectric projects anymore? Why don't you just promote renewable energy? Mr. Sir, the question is pertinent, but I must again point out that in order to have a transition to renewable energy, to non-fossil fuels, hydropower is an essential requirement. One aspect why it is an essential requirement is because solar and wind, the other sources of renewable energy, are intermittent, and they are unpredictable. You will have it sometime, you may not have it at another time. So because they are intermittent, you need a source of energy which can be ramped up and ramped down promptly, as quickly as possible, and hydro fills that bill. Hydro is also renewable energy. Around the world, hydro is recognized as renewable energy everywhere. All the developed countries have exploited their hydro potential to the full. Every developed country has exploited all its hydro potential. We are the only ones who are lagging behind. And hydro power is totally clean, totally natural, and
whenever we construct any project, we take great care to not only preserve the environment but also enhance the environment. Wherever we have constructed projects, the environment has improved rather than deteriorating. The greenery has improved. We have added more greenery than there was earlier. So hydropower is also very environmental friendly, and that is why around the world it is being exploited. Thank you. Thank you. Honorable CM Ramesh. Honorable CM Ramesh. Sir, Subhanshree, it is in Arunachal Pradesh. It has been started 20 years back. Still now it is not completed. What are the problems and what is the estimate at the time of 20 years back? What is the estimate now and what are the all other hydro projects or status? So the project was handed over to the National Hydropower Corporation in the year 2000 by the Brahmaputra Board. The estimates were prepared and the CCA gave its approval in 2003 and the work started in 2005, January 2005. Thereafter the work continued, but then there was some delay because of environmental clearance. All that environmental clearance was obtained and thereafter the work proceeded. But after 2011, the work was stopped because of different NGOs agitating against the construction. So this stoppage continued from 2011 to 2019 when we could restart the work again after orders from NGT and the Supreme Court dismissing all the applications of the different NGOs. So the work was started again and first 2 units will be commissioned in August 22 and the next 6 units will be commissioned in August 23. The estimated cost has gone up to about 19,000 crores. When it was first sanctioned, the estimated cost was approximately 6,285 crores. Now, the estimated cost is about 19,000 crores. Question number 227, Srimati Shanta Chhetri. Srimati Shanta Chhetri. Honorable Minister, question number 227. Honorable Shri G.K. Vasan. Honorable G.K. Vasan. Sir, I would like to tell the Honorable Minister, sir, that cancer is one of the most painful disease in the country, sir. The poor people suffer because of payment in hospitals. Rich manage because of private hospitals, sir. But the pain is for both poor and rich, sir. Sir, in Tamil Nadu, I would like to say that the state is well served with cancer setup, sir. Even in towns and hospitals, there are facilities for radiation, sir. We have the oldest medical college in 1835, sir. I would like to tell you, sir, that the radiotherapy was introduced in Chennai in the early 1909 next to Manchester. The point I would like to tell today is that, sir, radiotherapy is especially needed for tobacco-related cancer and uterus-related cancer, sir. Sir, specifically, sir, for this, we need lot of equipments in the country and medicine, sir. Now, especially for uterus-related cancer, sir, which is caused by sexually transmitted, sir, vaccines are very important, sir. Especially for ladies, sir, to prevent this uterus-related cancer, sir. I request the central government and the health department to find vaccines, sir, to save them from this uterus cancer, sir. Thank you. माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण आज देश में कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं और पिछले 7 सालों से लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कैंसर के पेशेंट हो और विशेष करके
महिला हो जो कि ग्रामीण शहरी विभागों में हो, उनके लिए ट्रीटमेंट हो, टेस्ट हो, उसके लिए सुविधा हो, रेडियोथेरेपी हो, इसके लिए पूरे प्रयास जारी किया है। आयुष्मान भारत जैसी योजना है जिसमें 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ से ज़्यादा भी बेनिफिशियरीज इस योजना में समाविष्ट है, उसका जरूर उन्हें लाभ मिलेगा और खासकर ग्रामीण विभाग में इसका फायदा मिलेगा। मैं माननीय सदस्य को जरूर कहना चाहूंगी कि तमिलनाडु में जो उन्होंने कहा है कि रेडियोथेरेपी के बारे में पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, जरूर हमारी सरकार लगातार प्रयासों में है और चेन्नई में रेडियोथेरेपी के द्वारा जो उन्होंने सवाल उठाया है उसमें जरूर हमारे मिनिस्ट्री के माध्यम से जरूर वहाँ पे मदद मिलेगी और अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो कि कैंसर के डिटेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रयासों में। धन्यवाद। श्रीमती सीमा द्विवेदी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैंसर संस्थान की स्थापना हुई है। महोदय, वहाँ पर अभी खाली ओपीडी शुरू हो पाई है, अभी वहाँ पर बहुत सारी जांचों का अभी तक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन सबों का संचालन अभी तक नहीं हो पाया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि ये कब तक वहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। और माननीय दूसरा सवाल मेरा वो था कि क्या कैंसर को लेकर के क्या कोई कैंसर रोधी टीका का कोई अभी तक निर्माण हो पाया है कि नहीं, अथवा इस पर सरकार कोई विचार कर रही है कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरी महिला सांसद ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। आज कैंसर के पेशेंट, विशेषता के महिला है जो गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित है, उसके लिए वैक्सीनेशन का प्रावधान जरूर रखा गया है। उसके लिए ग्रामीण विभागों तक ट्रीटमेंट और हमारी आशा बहनों के माध्यम से उन्हें मदद भी दी जाती है। और जैसा कि कहा कि उत्तर प्रदेश में कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, इसके लिए कुछ प्रावधान हमारी सरकार ने लगातार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खास इसी बात पर ध्यान रखा है। आज मेडिकल कॉलेजेस की संख्या है, आज पिछले 70 सालों में जितने एम्स बने हैं, उससे ज्यादा एम्स आज हमारे 22 एम्स हम बना रहे हैं। ये बड़ी गर्व की बात है कि हम खास करके सुविधाओं के लिए, आरोग्य की सुविधाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और ये एम्स में ये भी सुविधा मिलेगी कि जहाँ पे हम रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, और उसके साथ हर जिले से, जिला लेवल से, पीएचसी लेवल से, सब सेंटर लेवल तक इन्हीं माध्यमों से कैंसर डिटेक्शन जल्दी हो, ताकि डिटेक्शन होने के बाद उसमें ट्रीटमेंट में उन्हें मदद मिले। तो ये लगातार हमारे प्रयास सभी राज्यों में चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी कि महिला सांसद ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाकर और खासकर महिलाओं के कैंसर के बारे में प्रश्न पूछा। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद। माननीय महेश पोद्दार। धन्यवाद महोदय। महोदय, अपने देश में केंद्र सरकार देश भर में कई अस्पताल चला रही है और लाखों लोग, करोड़ों लोग उससे उच्च स्तरीय चिकित्सा पा रहे हैं। महोदय, इनमें कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या काम करती है और इसमें आवश्यकता भी हर साल पड़ती है। तो इसमें भर्ती के लिए हेल्थ और फैमिली वेलफेयर विभाग की स्टैंडिंग कमेटी की 126वीं मीटिंग में उन्होंने एक सिफारिश की थी रिपोर्ट में कि एम्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था की जाए, जिस तरह से लोगों को नियमित रूप से भर्ती की व्यवस्था की जा सके। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि एम्स में ऐसी कोई व्यवस्था हो गई और बाकी जो केंद्र सरकार के और जो अस्पताल है उनमें भी क्या सेंट्रलाइज तरीके से भर्ती की जाएगी ताकि कमी नहीं हो। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं एक बात का खुलासा करना चाहूंगी कि जब भी हमारे कुछ अस्पताल बनते हैं, नए बनते हैं, जैसे कि एम्स कहा गया माननीय सदस्य द्वारा, अलग अलग तरीके से उसका रिक्रूटमेंट होता है। कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं, कुछ पोस्ट से एग्जाम द्वारा सिलेक्ट होते हैं। उनके रिजल्ट आने के बाद कुछ एडवर्टाइज देके, कुछ आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस
जैसे अभी CNCI का हमारा विभाग शुरू हुआ है, उसमें आज का उसमें लगातार वो रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसीजर चालू है, ट्रेनिंग प्रोसेस में है। ये अलग अलग विभागों से हमारे सरकार द्वारा चालू है। अभी क्वेश्चन नंबर 228 डॉक्टर CM रमेश 228 माननीय मंत्री Answer of the question number 228 is laid on the table. Sir, whether the performance some of the public sector enterprises, which includes textiles, consumer goods, fertilizers and chemicals, engineering goods and pharmaceuticals, are affected by COVID-19 pandemic and thereby employment generation also affected. What is the ministry is going to do? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यगण, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यह एक नोडल डिपार्टमेंट है जिसमें CPSU आते हैं। इसी में माननीय सदस्यगण ने पूछा है कोविड-19 के पैंडेमिक में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में क्या फर्क पड़ा है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, अगर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 2015-16 से CPSU में जो 1,14,229 जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था तो बढ़ते गया। 2018-19 में 1,42,666 था और 2019-20 में थोड़ा कम हो चुका है, वो 93,295 करोड़ हो गया है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि इसमें लास्ट ईयर कोविड के टाइम थोड़ा प्रॉफिट कम हो चुका है और थोड़ा लेबर के भी परिणाम हो चुका है। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर CM रमेश In spite of a huge investments in public sector undertaking, it is gathered is not the contributing as per the expectations to net domestic products of the country. It is also what are we going to do? माननीय सभापति महोदय, CPSU में टोटल 256 है, उसमें से 171 प्रॉफिट मेकिंग है और 84 लॉस है। जिसमें लॉस होता है उसके डिसइन्वेस्टमेंट में 35 ले जा रही है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, इसमें जो नॉन प्रॉफिट है तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का कोई चलने वाली है और जो लॉसेस में है जो इनको कैसा सुधार करे, इसीलिए कोशिश चल रही है। सैयद जफर इस्लाम जी, माननीय सैयद जफर इस्लाम जी। For giving me this opportunity to ask a question, supplementary question. To you, sir, I would like to ask the Honorable Finance Minister whether the Ministry has undertaken any evaluation exercise to ascertain why the market capitalization of public sector undertaking is at the rock bottom compared to the private sector companies, especially when we know that this is the best source of growth capital, and in India we need a lot of growth capital for PSUs as well as for private sector companies. I must also compliment the Finance Minister for having taken a decision like some of the prominent issues which were actually bottleneck, like they have done away with. But is there any other reason where she thinks or the ministry thinks that would be addressed so that the market capitalization of the public sector and the private can grow? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, सदस्य ने पूछा है कि कैपिटलेशन में और किससे इंक्वायरी होता है क्या, तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रेगुलरली उसका इवैल्यूएशन किया जाता है और जो लॉस मेकिंग कंपनीज है उसको दबाव कैसा दिया इसमें कोशिश किया जाता है। डॉक्टर सस्मित पात्रा। My question to the Honorable Minister is that in the reply there are 276 PSEs which have shown PAT, either positive or negative,
Out of them, 83 have a negative profit after tax. Has the ministry considered advising the Department of Public Enterprises either to proceed for disinvestment or to improve the performance of the PSCs? माननीय सभापति महोदय, जैसे सदस्य महापात्रा ने पूछा है, लॉस मेकिंग कंपनीज 84 है और 84 कंपनी सुधारने की कोशिश की जाती है और अगर उसमें से बढ़ावा नहीं मिल सका, इम्प्रूवमेंट नहीं हो सका तो डिस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें 35 लिस्ट है, इनलिस्टेड कंपनीज है, जिससे डिस इन्वेस्टमेंट की कार्रवाई चल रही है। श्री माथुर जी लोखंडवाला। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में जो डिसइन्वेस्टमेंट हुए हैं उसका प्रभाव क्या पड़ा है और अभी क्या चल रहा है, उसका ब्यौरा देंगे। पब्लिक सेक्टर में जो डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है तो उसका प्रभाव जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू डिसाइड करता है, वो डिसाइड वैल्यू में आए तो ही डिसइन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उसमें देखा एक तो प्रॉफिट में वो कंपनी नहीं रहती है, उतना ही नहीं तो लेबर का कामगारों का भी आंकड़ा कम रहता है, तो इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को जो लॉस मेकिंग है लॉस कम हो जाएगा और उतना ही नहीं तो जो अगर प्राइवेट वाले किसके पास जाने के बाद एक इनकम बढ़ेगा और इनकम उसके साथ कामगारों की संख्या भी बढ़ सकती है, लोगों को मजदूर मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 श्री सुशील कुमार गुप्ता जी एब्सेंट। माननीय फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर कांता करदम। देश में सौर ऊर्जा के उपयोग के वृद्धि हुई है, की संख्या कितनी है तथा केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश में कुछ भी बोल दीजिए। क्या देश में सौर ऊर्जा धन्यवाद सर। क्या देश में सौर ऊर्जा के उपयोग की वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार सौर पार्कों की संख्या कितनी है? ये केंद्र सरकार के द्वारा ये कितने उत्तर प्रदेश में सौर पार्कों की विकसित कराने के लिए कितनी राशि आवंटन करी गई है? अध्यक्ष महोदय, देश में सौर ऊर्जा की बढ़ोतरी काफी तेजी से हुई है। हम लोगों की सौर ऊर्जा की क्षमता पिछले 7 वर्षों में 5 गुना हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में भी कई सारे हमारे सोलर पार्क्स टेकअप हुए हैं। जो सोलर पार्क्स टेकअप हुए हैं उत्तर प्रदेश में उनकी सूची मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा। श्री कामाख्या प्रसाद तासा। थैंक यू सर। मैं मंत्री जी का पेंशन पर सुना, वो निश्चित रूप से दिया है, विस्तृत रूप से दिया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ क्या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर में मीडियम और स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए क्या पार्टिसिपेशन का क्या व्यवस्था है, उनके लिए कुछ प्रायोरिटी का व्यवस्था है कि नहीं, और मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया का हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला इसमें प्रयोग करने का क्या व्यवस्था मिनिस्ट्री ने लिया है, काइंडली बताएंगे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों जो क्षमता स्थापित करते हैं
वो ओपन टेंडर के आधार पर करते हैं। ओपन बिड होता है जिसमें कोई भी कम्पीट कर सकता है, उसमें कोई किसी के लिए रिजर्वेशन हम लोगों ने नहीं रखा है। जहां तक कि मेक इन इंडिया का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर मेक इन इंडिया को इनकरेज करने के लिए हमने जो इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स हैं और सोलर सेल्स हैं उस पर ड्यूटी लगाने की व्यवस्था की है और ये ड्यूटी अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी और ड्यूटी काफी मात्रा में है। इसके पहले हमने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई थी जो कि अभी कुछ महीने चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सोलर सेल्स और पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया है और उसका भी बिड हुआ है। तो जो लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसको हम लोग इंसेंटिव देंगे। ये हमारी योजना है, ये सरकार ने इस योजना को स्वीकृत की है। इसके अलावा हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई है जिसमें कि मेक इन इंडिया सोलर सेल्स और पैनल्स का इस्तेमाल होना होगा, जैसे कि कुसुम योजना है, जैसे रूफटॉप योजना है, इसमें मेक इन इंडिया सोलर सेल्स और पैनल्स का ही इस्तेमाल होगा। हम लोगों ने एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स रखा है, जो मेक इन इंडिया है उसी का उसमें एंट्री होता है और उसी से निर्माण होना है। अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। विंड एनर्जी में भी हमारे यहाँ जो निर्माण क्षमता है वो हमारी आवश्यकताओं के लिए सफिशिएंट है और हमारे यहाँ ही जो बनते हैं इक्विपमेंट विंड एनर्जी में उसी का इस्तेमाल होता है और हम विंड एनर्जी के इक्विपमेंट को निर्यात भी कर रहे हैं। तो यहाँ मेक इन इंडिया हो, इसके लिए हम लोगों ने सारे कदम उठाए हैं और वो सक्सेसफुल हो रहा है। अशोक वाजपेयी, श्री अशोक वाजपेयी, श्री अशोक वाजपेयी। माननीय उप सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, इस पंचवर्षीय योजना के अंत तक उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य है और उसमें निजी क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है और सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है। इस पंचवर्षीय योजना तक कितना उत्पादन उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय विद्युत का हो सकेगा? अध्यक्ष महोदय, हम लोग ये जो लक्ष्य रखे हैं वो पंचवर्षीय योजना के हिसाब से नहीं रखे हैं। हम लोगों ने राज्यों को राज्यों के ऊपर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन लगाया है और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का खपत है उसका 19% ये रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश उससे बहुत पीछे है। और अध्यक्ष महोदय, जो भी क्षमता स्थापित होती है, जैसे हमने कहा, वो ओपन टेंडर के हिसाब से होती है। लगाने वाले ये निजी क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, लेकिन जो उत्पादन होता है वो उत्पादन को सरकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो खरीदती हैं। उत्तर प्रदेश में अभी रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोलर एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1890 मेगावाट। House stands adjourned to meet at 2 p.m.